Dear students, today we are discussing about fourth unit electromagnetic induction. First topic, magnetic flux. What is magnetic flux? When any surface area is placed into the magnetic field, then magnetic force lines crossed this surface, and when they cross this surface are associated with the surface, then a new physical quantity is denoted. It is called magnetic flux. When any surface is placed into magnetic field, then magnetic force lines crossed this surface are associated with with this surface, then linked magnetic field with any surface is known as magnetic flux. When magnetic flux is associated with any surface area which is placed into magnetic field is known as magnetic flux. And what is magnetic flux? So magnetic flux, what is magnetic flux? Magnetic flux of any surface, magnetic flux of any surface linked with a surface when held in a magnetic field is product of component of magnetic field normal to the surface and the surface area. In other words, we can say this: the magnetic flux through any surface placed in a magnetic field is the total number of magnetic lines of force crossing the surface normally. इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए सरफेस से, रेगुलर और इरेगुलर सरफेस से को क्रॉस करने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नॉर्मली एरिया को क्रॉस करती हैं, उसे ही उस सरफेस से एसोसिएटेड और लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स of any surface is the number of magnetic force line linked with that surface normally, or in the other way, magnetic flux of any surface is equal to normal component in the direction of surface, normal component of magnetic field in the direction of magnetic field to area of surface. अर्थात किसी सरफेस से संबद्ध और एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू या मैग्नेटिक फ्लक्स न्यूमेरिकली उस सरफेस से नॉर्मली गुजरने वाली या क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एवं मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट एवं एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होती. जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन, ये आपका एक सरफेस हो गया, एरिया ए हो गया. इस एरिया ए में ये एरिया ए एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है. ए सरफेस एरिया ए इज प्लेस्ड इनटू ए यूनिफॉर्म magnetic field perpendicular to the magnetic field, then linked magnetic flux with this area phi is equal to B into A. But this surface is placed perpendicular because direction of this surface is this. It means magnetic force lines and direction of surface is parallel. Magnetic field lines एवं direction of surface is in the same direction, while direction of magnetic field and direction of surface is perpendicular to each other.
यदि किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, यदि किसी सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है तो सरफेस का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। सरफेस का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर क्या होगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन यदि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल इस तरह से जा रही हो और सरफेस थीटा बना एंगल बनाते हुए, सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर किससे, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया हो, तो इस स्थिति में इसका नॉर्मल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। इसका नॉर्मल कंपोनेंट बी का नॉर्मल कंपोनेंट बी कॉस थीटा, और टोटल एरिया ए है, तो associated or linked magnetic flux will be of the surface will be phi is equal to BA cos theta is equal to B bar dot A bar. But when magnetic field is uniform, and surface is irregular, यदि आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो लेकिन जो आपका सरफेस है वो इरेगुलर हो, तो ऐसी कंडीशन में इस पूरे सरफेस को स्मॉलर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उस स्मॉलर पार्ट से एक स्मॉलर पार्ट एरिया वेक्टर ds से हम एंगल निकालकर इसका स्मॉलर माने मैग्नेटिक फ्लक्स d फाई को कैलकुलेट करते हैं। देन d फाई विल बी इक्वल टू b cos थीटा dA और b बार डॉट dA, और टोटल इरेगुलर सरफेस से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v बार डॉट dA। तो ये रहा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पर है, या एसआई यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है, जो ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, WEBER वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 स्क्वायर मीटर। 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला 1 स्क्वायर मीटर। 1 WB इज इक्वल टू T इंटू स्क्वायर मीटर। जबकि सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट, अच्छे से ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है, मैक्सवेल है, और 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहने का मतलब 1 वेबर क्या हुआ कि ऐसा मैंने किसी सरफेस को या सरफेस वेक्टर को 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर किसी 1 स्क्वायर मीटर के एरिया वेक्टर को 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स को 1 वेबर फ्लक्स कहा जाता है। 1 वेबर फ्लक्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एसोसिएटेड फ्लक्स is numerically equal to the associated flux of 1 square meter area vector when it is placed into or inside the 1 Tesla magnetic field perpendicular to the where surface is perpendicular to the magnetic field. Similarly, one Maxwell इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया वेक्टर से एसोसिएटेड वो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया वेक्टर को 1 गॉस के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखने पर उससे एसोसिएट आर लिंक होता है। तो 1 मैक्सवेल, अब चूंकि 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 स्क्वायर मीटर, इसलिए 1 वेबर इज इक्वल टू, हम 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस और 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10⁴ स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन हो गया।
वेबर और मैक्सवेल में क्या हो गया, रिलेशन। तो अच्छे से ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, एंड व्हेन any unit square meter area vector is normally placed into the magnetic field of 1 Tesla, then associated or linked magnetic flux with that surface is known as 1 Weber and 1 Tesla and 1 Maxwell. When any unit or 1 square centimeter area vector is normally placed inside the magnetic field of 1 Gauss is known as then associated magnetic flux is known as 1 Maxwell. 1 Tesla equal to 10 raised to 4 Gauss and 1 square meter equal to 10 raised to 4 square centimeter. So 1 Weber equal to 10 raised to 8 Maxwell. Now dimensional formula of magnetic flux. Dimensional formula, phi is equal to, since phi equal to BA or BA cos theta, and B is equal to F upon QB sin theta. F upon QB sin theta. So phi is equal to F upon QB sin theta. A Q का यूनिट कुछ नहीं होता, Q को हम I इंटू T नोट कर सकते हैं, तो phi इक्वल टू F अपॉन IT B sin थीटा. F फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है MLT माइनस 2, I का एम्पियर A, T का टाइम, V का L इंटू टी रेस टू माइनस 1 एंड एरिया, यहाँ एरिया नोट करना भूल गया हूँ, एरिया का हो गया L स्क्वायर. कैलकुलेट करोगे तो अपने को डायमेंशनल फार्मूला मिलता है. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्लक्स M L स्क्वायर T रेस टू माइनस 2 A रेस टू माइनस 1. तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला के साथ यूनिट्स क्या है सीजीएस सिस्टम में, एसआई यूनिट सिस्टम में, और व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ये अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके पूर्व क्या हो गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी के पहले एम्पियर और ओरेस्टेड एम्पियर, इन लोगों के द्वारा ये शो किया जा चुका था, ये डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका था कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो उसके चारों ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. ये एम्पियर और ओरेस्टेड के द्वारा पहले ही प्रूव किया जा चुका था, लेकिन इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है. ये भी बात लोगों को मालूम थी, लेकिन इसे डिमोन्स्ट्रेट नहीं किया जा सका था. तो इसी पर प्रैक्टिकल चल रहे थे. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी से रिलेटेड है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF due to change of magnetic field linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. The phenomena of production of induced EMF, the phenomena of production of induced EMF and due to change of magnetic flux linked with a closed circuit
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का आशय है कि किसी क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण, किसी क्लोज सर्किट से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण उस क्लोज सर्किट में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के प्रोड्यूस होने की फिनोमिना को या घटना को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। द फिनोमिना इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट ड्यू टू चेंज of magnetic flux linked with this circuit. The phenomena in which induced EMF is produced. The phenomena in which induced EMF is produced in a closed circuit. Due to change of magnetic flux linked with this क्लोज्ड सर्किट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत बड़ी फिनोमिना थी। आज की हमारी डेली लाइफ की जो मॉडर्निटी है, जो डेवलपमेंट है, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आने के बाद ही जो हमारे फैन से लेकर ट्रांसफार्मर तक की जो हमारी पहुंच थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमिना के कारण ही हमें देखने में आई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो हम कह सकते हैं द फिनोमिना इन विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज्ड सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज्ड सर्किट। तो ये माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Faraday's experiment about electromagnetic induction, जब ये चीज क्लियर हो गई कि ओरेस्टेड, एम्पियर और अन्य के एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसके कन्वर्स पर भी विचार किया गया। ये माना गया कि इसका कन्वर्स की व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेबल देन इलेक्ट्रिक करंट शुड बी आल्सो प्रोड्यूस्ड। यदि इलेक्ट्रिक माने मैग्नेटिक फील्ड को चेंजेबल किया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट भी इसके कारण प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। माइकल फैराडे, जो कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में एक जगह प्रोफेसर थे, उन्होंने अनवरत 12 वर्षों तक इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक उसी समय अमेरिका के हेनरी जॉब भी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और दोनों को सफलता मिली एक ही समय। और उन्होंने पाया, उनका जो एक्सपेरिमेंट था कि इन जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण भी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज यदि किसी क्लोज सर्किट से या किसी क्लोज्ड कॉइल से या किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को किसी कॉइल से रिलेटेड किया जाए तो उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंज होता है उसके कारण तब तक उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है। और यदि सर्किट क्लोज है या कॉइल क्लोज सर्किट में है तो ऐसी कंडीशन में उस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसे ही, इस फिनोमिना को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था उसे हम समझते हैं। फैराडेस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ ए स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। जो फैराडे महोदय ने एक कॉइल को स्थिर करके उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को उसके टुवर्ड्स द मैग्नेट कॉइल मैग्नेट को लाया, बार बार लाया उन्होंने, और इस कॉइल से उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। एक कॉइल ली और एक कॉइल से क्या किया उन्होंने, कॉइल के क्लोज सर्किट में एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। और जब उन्होंने देखा
कि किसी स्ट्रांग मैग्नेट बार मैग्नेट को के एन नॉर्थ पोल को तेजी के साथ क्वाइल की ओर लाया जाता है, तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में क्वाइल के लाने के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, माने जब पास लाया जाता तो जीरो से राइट साइड में डिफ्लेक्शन आया, जबकि यहाँ किसी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने देखा बार बार यदि नॉर्थ पोल को मैं क्वाइल के तेजी के साथ क्वाइल के नजदीक ले जाया जाए, तो जैसे जैसे क्वाइल के नजदीक हम मूवमेंट बढ़ाते हैं, तेजी से लाते हैं, तो यहाँ पर क्वाइल में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, और यह डिफ्लेक्शन तब तक बना रहता है जब तक कि क्वाइल को मूविंग कंडीशन में, क्वाइल के रिस्पेक्ट में मैग्नेट मूविंग कंडीशन में रहता है। इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने जब सेकेंड टाइम रिपीट किया कि क्वाइल से मैग्नेट को, जिस मैग्नेट को बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को वो नजदीक लेके आए थे, उसे दूर ले गए। जब दूर ले जाया जाता है मैग्नेट को, क्वाइल से अवे ले जाया जाता है मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, तो पुनः डिफ्लेक्शन होता है। लेकिन अब डिफ्लेक्शन जो था, अब डिफ्लेक्शन क्या था, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, पहले की कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था। पहले राइट डायरेक्शन में था, जीरो के राइट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जब नॉर्थ पोल को क्वाइल से दूर ले जाया गया, तो ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन तो हुआ, डिफ्लेक्शन लेकिन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन हुआ। थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने पोल को चेंज करके किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया कि पोल को, नॉर्थ पोल की जगह पर साउथ पोल को क्वाइल के टुवार्ड्स लाया, तब भी डिफ्लेक्शन तो हुआ गैल्वेनोमीटर में, लेकिन जब नॉर्थ पोल को ला रहे थे तो राइट साइड में हो रहा था डिफ्लेक्शन, जब साउथ पोल को ले जाया गया तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में हुआ। और इसी तरह से जब क्वाइल को दूर ले जाया गया, जब क्वाइल को बार मैग्नेट से क्वाइल को दूर ले जाया गया, तो ऐसी कंडीशन में क्वाइल में डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन पहले के कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अब राइट साइड में डिफ्लेक्शन हुआ। इस तरह से चार एक्सपेरिमेंट, चार टाइम उन्होंने क्या किया, रिपीट की इनको एक्सपेरिमेंट को, और उन्होंने पाया कि चार के साथ एक और फिफ्थ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसी में, फर्स्ट में, कि इन क्वाइल को कांस्टेंट रखते हुए उन्होंने मैग्नेट को कांस्टेंट कर दिया, नीरर ले जाकर कांस्टेंट कर दिया, बल्कि उसकी क्वाइल के बीच में भी रखा कांस्टेंट करके। तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। अर्थात डिफ्लेक्शन कब आया, जैसे ही हम क्वाइल को कांस्टेंट रखते हुए बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, जब हम जैसे जैसे क्वाइल की ओर ले जाते हैं, तो क्वाइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स चेंज होती है। जैसे जैसे नीरर लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगी, और क्वाइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को स्टेशनरी क्वाइल के नीरर ले जाते हैं, तो जैसे जैसे हम क्वाइल के नीरर ले जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, पहले के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होते जाती है। इस तरह से क्वाइल से एसोसिएटेड, क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिसका क्वाइल अपोज करती है, और इस अपोज के कारण ही क्वाइल के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होता है। और चूंकि क्वाइल क्लोज सर्किट में है, जिसके कारण क्वाइल में एक डायरेक्शन विशेष में करंट फ्लो होने लगता है। पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उस ऑब्जर्वेशन का जो एक्सप्लेनेशन था वो ये हुआ। सेकंड, जब क्वाइल को बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्वाइल से दूर ले जाया जाता है, तो क्वाइल से एसोसिएटेड स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम होती है। पहले के कंपैरिजन में पहले स्ट्रॉन्गर था,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहता है, लेकिन जैसे जैसे दूर ले जाते हैं इससे होकर जाने वाली, क्रॉस करने वाली, कॉइल को क्रॉस करने वाली मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डिस्टेंस पे आते जाती हैं और रेयरर होते जाएंगी जैसे जैसे रेयरर होंगी, जिसके कारण आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है किससे एसोसिएटेड, कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड वीकर होते जाएगा। माने स्ट्रॉन्गर टू वीकर, जब हम दूर ले जाते हैं तो कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्गर से वीकर होता है, जिसके कारण कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। और इस चेंज के कारण, इस चेंज का कॉइल विरोध करती, कॉइल के अंदर इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का विरोध किया जाता है, जिसके कारण कॉइल के अंदर इस विरोध के परिणाम स्वरूप एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि मैग्नेट को दूर ले जाने में किए गए कार्य के इक्वल होता है। और यही इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है, तो जिसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब माने पोल को चेंज करके लाया गया साउथ पोल को, तो कहा यह जाता है कि जब हम साउथ पोल को लाते हैं तो साउथ पोल से जाने वाली जो फील्ड्स है, फील्ड लाइंस है, वो उसको क्रॉस करेंगे, नीरर लाते हैं, तो इसके कारण भी यही स्थिति बनेगी कि जो आपका कॉइल है इसके अपोजिंग के कारण, इसको अपोज करने के लिए कॉइल नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। कॉइल खुद एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी और नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैंने जब साउथ पोल को लाएंगे कॉइल की ओर, तो कॉइल खुद साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाएगी और साउथ साउथ में क्या होगा, रिपल्सन होता है। लेकिन जब इस रिपल्सन के अगेंस्ट हम साउथ पोल को वर्कआउट करके नीरर लाते हैं, तो ये हमारे द्वारा जो वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और सर्किट क्लोज है, जिसके कारण इसमें करंट फ्लो होता है। इसी तरह से जब हम साउथ पोल को दूर ले जाते हैं, जब साउथ पोल को कॉइल से दूर ले जाएंगे, तो चूंकि कॉइल अपने नेचर में होने वाले, कॉइल अपने से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में के वीकर होने का अपोज करेगी, और अपोज करने के कारण कॉइल स्वयं नॉर्थ साउथ पोल लेके आ रहे हैं, तो कॉइल का फ्रंट फेस स्वयं नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में क्या होता है, इसकी पोलरिटी नॉर्थ हो जाएगी और नॉर्थ और साउथ के बीच में अट्रैक्शन होता है। जब हम इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट, जब हम इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट साउथ पोल को दूर ले जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे द्वारा जो अट्रैक्शन के अपोज में अमाउंट ऑफ वर्क डन लगाया जाता है या दिया जाता है कॉइल को, कॉइल से मैग्नेट को दूर ले जाने में, वह कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है, और जिसके कारण कॉइल के अंदर करंट फ्लो होता है। लेकिन जब हम किसी मैग्नेट को या किसी कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, या कॉइल को एक स्टेशनरी कॉइल को एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में भी रख दें, तो कॉइल में से लिंक्ड, कॉइल से कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि इससे रिलेटेड, इससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है। और इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होगा जबकि लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो, अर्थात वो कंटिन्यू चेंज होता रहा, चेंज होते रहे। माने अर्थात किसी भी कॉइल से एसोसिएटेड इंड्यूस्ड ईएमएफ, किसी भी कॉइल से में इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक बना रह सकता है जब तक कि उस कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज बना रहे, वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, लेकिन जैसे ही कांस्टेंट होगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with respect to coil, when change of magnetic field is constant with respect to stationary coil or moving coil, then induced EMF cannot be produced in the coil or closed circuit। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था,
उसमें जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया उसका एक्सप्लेनेशन था। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो किया गया फैराडे के द्वारा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल। तो उन्होंने अब क्या किया, सेकंड जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया, मैग्नेट को कांस्टेंट कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करने के बाद उन्होंने कॉइल को मूविंग बना दिया। जब कॉइल को मूविंग कॉइल को नॉर्थ पोल की ओर तेजी से ले जाया जाता है, जब पहला तो ये रहा कि जब मूविंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दिया गया, कांस्टेंट रख दिया गया, स्टेशनरी बना दिया गया, तो गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं पाया गया। लेकिन जैसे ही हम मूविंग कॉइल को नॉर्थ पोल की ओर, नॉर्थ टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल मूव करते हैं, वैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है। गैल्वेनोमीटर में एक साइड विशेष में, एक डायरेक्शन विशेष में डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। इसी तरह से जब when we move coil against direction of magnetic field, then again Faraday seen deflection in the galvanometer। इस तरह से जब मूविंग माने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट करके कॉइल को टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड मूव किया गया तो डिफ्लेक्शन आया, और जब उससे अवे ले जाया गया, दूर ले जाया गया, तब भी डिफ्लेक्शन आया। अर्थात जब कॉइल से रिलेटेड, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एक रिलेटिव टर्म है कि जब तक मैग्नेट या कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है तब तक जो उससे एसोसिएटेड, उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वेरिएबल बना रहता है, और वेरिएबल बने रहने के कारण इसके अगेंस्ट जो वर्क होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के रूप में कॉइल के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है। ये दो एक्सपेरिमेंट हुए। थर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ, थर्ड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था फैराडे के द्वारा, जो किया गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय वेरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल। उन्होंने एक माने सिलेंड्रिकल एक मटेरियल लिया और उसके ऊपर दो कॉइल लपेट दी, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो अलग अलग कॉइल कनेक्ट कर दी। एक कॉइल को उन्होंने बैटरी और रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, और सेकेंड कॉइल से को सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो किया जाता है तो करंट जीरो से एक हाई मैक्सिमम कंडीशन तक पहुंचता है। माने एक निश्चित, जब किसी करंट माने कंडक्टर को किसी सेल से जोड़कर हम करंट फ्लो करते हैं तो स्टार्टिंग में करंट जीरो रहता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट जीरो से हाई पे जाएगा। तो जब करंट जीरो से हाई पे जाता है, क्योंकि करंट यूनिट बाई यूनिट चलता है, तो करंट यूनिट बाई यूनिट जब चलेगा जीरो से हाई की ओर जाएगा, करंट जीरो से हाई की ओर जाएगा। थर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ वैरिंग करंट इन द नेबरिंग कॉइल, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यदि प्राइमरी कॉइल में कांस्टेंट करंट, जैसे ही हम करंट स्टार्ट करते हैं वैसे ही सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन शो होता है। लेकिन जब एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगता है तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन जब हम रियोस्टेट की सहायता से करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, रियोस्टेट की हेल्प से करंट को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है। और जब डिक्रीज करते हैं तब भी करंट को डिक्रीज करने पर भी सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन शो होता है। और यदि करंट कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड किसी बने गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं होता। अब दूसरी चीज ये कि यदि जो हमने रॉड ली हुई है, जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, उसकी जगह हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करें तो जो डिफ्लेक्शन होता है
वो बहुत फास्ट और बहुत अधिक होता है। तो इस तरह से टू कॉइल्स की हेल्प से उन्होंने देखा कि फर्स्ट कॉइल में चेंज करने पर, करंट की वैल्यू चेंज करने पर या चेंजेबल करंट बनाने पर सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन दिखता है, और यदि करंट कांस्टेंट है तो सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन नहीं होता। फैराडे ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि जब करंट स्टार्ट होता है, जब करंट को हम प्रेस करके, कुंजी को प्रेस करके, की को प्रेस करके जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट जीरो से हायर पे पहुंचता है। तो करंट जब जीरो से हायर पे पहुंचता है तो यूनिट बाय यूनिट करंट पास होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशो में, करंट की वैल्यू के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी तीव्रता के साथ इंक्रीज होती है। और इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में इस चेंज के कारण जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट होता है तो वो फ्लक्स चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। और चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी कॉइल से, क्लोज कॉइल से एसोसिएटेड होता है तो उस कॉइल में डिफ्लेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण करंट फ्लो होगा और इन सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन जब हम स्विच को ऑफ कर देंगे तब भी उसी कंडीशन में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन करते समय जैसे ही हम प्राइमरी कॉइल को स्विच ऑन करते हैं हमें सेकेंडरी कॉइल में डिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल को ऑन करते ही वैल्यू, करंट की वैल्यू जीरो से हायर की ओर इंक्रीज होती है। साथ साथ मैग्नेटिक करंट की वैल्यू बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में भी तीव्रता के साथ चेंज होता है। और ये चेंज जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, when change of magnetic field is associated with secondary coil, then a magnetic flux, changeable magnetic flux linked with the secondary coil, which produced induced EMF into secondary coil. Due to this, a induced current flows in the secondary coil and we get deflection in galvanometer. Again, when we break circuit, then maximum current decreases till zero. Maximum current decreases till zero, and due to this reason magnetic field decreases maximum to zero, and due to this reason change of magnetic field, when this change of magnetic field is linked with secondary coil, then induced EMF is produced in secondary coil which opposes this change, and induced current flows into secondary coil and deflection shows us. Third, when current is constant, then a constant magnetic field produced by this primary coil, and when magnetic field is constant, then linked magnetic flux will be also constant. It cannot be variable. So galvanometer does not show any deflection. And when soft iron core is used as a cylindrical object, then deflection is fast and induced current is high, because changeable magnetic field or variable magnetic flux is linked fastly with secondary coil. तो ये एक्सपेरिमेंट के 3 टाइप से एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फैराडे ने, और इन माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकाला उसे उन्होंने 2 लॉज के रूप में दिया। और 2 लॉज क्या थे? वो फर्स्ट लॉ है कि whenever the magnetic flux linked with a closed circuit changes, and EMF is induced in it, which lasts only so long as the change in flux is taking place. This phenomenon is called electromagnetic induction. First law क्या था कि whenever the magnetic flux linked with a closed coil changes, whenever the magnetic flux linked with a closed coil or
closed circuit changes and EMF is induced in that coil or closed circuit which lasts only so long as the change in flux is taking place. Whenever the magnetic flux linked with a closed circuit or coil changes, an induced EMF is produced in that closed circuit or coil, and which lasts only so long as the change in flux is taking place. This phenomena is called electromagnetic induction. This is the first law of Faraday. तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है कि when magnetic flux linked with a coil changes, or whenever we make changes in the associated or linked flux with a closed circuit or coil, then an induced EMF is produced in that particular coil, and it can be changed only such that when ये तभी तक चेंज हो सकता है जब तक कि so long as the change in flux is taking place, जब तक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। कहने का मतलब कि हमें कहा जा रहा है कि जब हम किसी कॉइल या क्लोज सर्किट से एसोसिएटेड या लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन दैट कॉइल। उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है जो तभी तक उसमें बना रहता है जब तक कि उस क्लोज सर्किट या कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहे। अर्थात प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ की लाइफ तभी तक है जबकि उस क्लोज सर्किट या क्लोज्ड कॉइल से रिलेटेड या एसोसिएटेड या लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेबल हो। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होता है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है, और यदि कॉइल क्लोज सर्किट में है तो कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है जिसका डायरेक्शन इस तरह होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है कि व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सर्किट और कॉइल, then an induced EMF is produced in that coil. Life of that induced EMF is only that time when we make our magnetic flux changeable. When it is constant, when the value of magnetic flux is constant, then induced EMF will be 0. Since coil or closed circuit is in the closed, so an induced current flows in it. This phenomena is known as electromagnetic induction. जब किसी coil से associated or linked मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है, तो या फिर किसी कॉइल को चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है या रखा जाता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके कारण उसमें एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है जो इस चेंज का, जो मैग्नेटिक फ्लक्स में
उससे एसोसिएटेड, क्लोज सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है, और चूंकि सर्किट क्लोज है इस कारण से उसमें एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है। इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, और ये इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक रहता है जब तक कि कॉइल या क्लोज सर्किट से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल हो। यदि ये कांस्टेंट है तो इसमें किसी तरह का कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड नहीं होता। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ सेज व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स induced EMF depends on the change of flux with respect to time। तो सेकेंड लॉ में माइकल फैराडे ने कैलकुलेट किया कि कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड होगा कितने मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज पर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सेकेंड लॉ हमारा कहा गया फैराडे सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit mathematically E is equal to minus d phi upon dt। The magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit mathematically equal to minus d phi upon dt। किसी भी क्लोज सर्किट या क्लोज सर्किट या क्लोज्ड कॉइल से एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी क्लोज सर्किट या क्लोज्ड कॉइल के में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है। induced EMF on any closed circuit or coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux। Second law says the magnitude of the induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit mathematically E equal to minus d phi upon dt, where minus sign shows the direction of electromotive force which opposes the change in magnetic flux associated with the closed circuit। अब सेकेंड लॉ को प्रोड्यूस और कर देते हैं कि let phi1 and phi2 be the value of magnetic flux linked with the coil at t equal to 0 and t equal to n time t respectively। मान लेते हैं कि हमने सपोज किया कि एक कॉइल से इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर लिंक फ्लक्स की वैल्यू phi1 है, और आफ्टर टी टाइम इंक्रीज होकर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स phi2 हो जाता है। इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स phi1 है, और आफ्टर टी टाइम it increases and it reaches at phi2, then change of magnetic flux will be phi2 minus phi1 upon t minus 0, अर्थात phi2 minus phi1 upon t। The rate of change of magnetic flux is equal to phi2 minus phi1 upon t। If E is the induced EMF due to change of magnetic flux, so E proportional to phi2 minus phi1 upon t, or E is equal to minus k into phi2 minus phi1 upon t, where k is a proportional constant which depends on rate of change of magnetic flux, and in SI system, international standard system, k is equal to 1 if d phi is a small change in magnetic flux, in a small time dt, then from equation 1 E is equal to
minus k into d phi upon dt. Since value of k equal to 1, so E is equal to minus d phi upon E is equal to minus d phi upon dt. d phi upon dt since k is equal to 1. But in CGS system, k is equal to 1 upon c, where c is the speed of light. But in CGS system, E is equal to minus 1 upon c into d phi upon dt, where c is the speed of light. In SI system, k is equal to 1, so E equal to minus d phi by dt. This, and if the coil consists n terms, यदि coil n टर्न से मिलकर बनी हुई है, coil में कुल n फेरे हों, तो वन coil के वन टर्न से एसोसिएटेड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है E डी फाई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी. यही हमें करना था. तो ये हमारा हो गया फैराडेज लॉ. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.